lecture by Professor Vivek Prasad. So we are having many lectures from botany department, which is one of the better departments of the science faculty. He has got more than 70 research papers in impacted and peer-reviewed journals. So now, without going into much of his illustrious biodata, I will invite Dr. S.N. Pandey that please come onto the stage and deliver his lecture. Thank you very much. Welcome, Dr. Pandey. Thank you, Professor Sudhir Mehrotra sir. The members, organizing committee, senior professors of different departments over here, students, colleagues, participants. It's my proud privilege to deliver lecture at this occasion of Science Festival 2020. Actually, this is part of centenary year celebration of Lucknow University. Lucknow University is celebrating 100 years of existence as synonyms of excellence, not only the country but international fame. This university celebrating centennial celebrations this year, and it is running from November 19 to 25. So I am very proud to deliver a lecture at this moment, and I selected the topic that is very common for all the people who are very curious to know each and everything around their existence, and the human beings are suffering from different types of problems that include common term, the sustainability, the environmental changes, and their management. Actually, I am from botany department, and my specialization and all the study materials is related to the plants. So I selected the environment and the plant protection, their sustainability by the management of nutrition. और मैंने ये जो टॉपिक है वो बड़े कॉमन टर्म के हिसाब से आप सभी लोगों के लिए, जो कि सभी पार्टिसिपेंट्स हैं और विभिन्न डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिसिप्लिन से यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए मैंने बहुत आसान सा, जो अगर शायद क्लियर हो रहा है, द टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन अंडर रिसेंट एनवायरमेंटल चेंजेस. हियर 3 terms: the nutrients management, sustainable crop production, and nutrients management, and under the recent environmental changes. Okay. Here the environment, we know environment is the constituents of various factors which are a set of conditions. The conditions are variable from place to place, therefore the growth and distribution of plants are variable. The changing environment is not a new phenomena, but it is from the beginning of the life, before 3.5 billion years ago when life was started. उस समय भी क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इन्वायरमेंटल चेंजेस थे, पर्यावरण में बदलाव हो रहा था, और वो सतत प्रक्रिया है. अगर आप इसको महसूस करें तो सुबह के टाइम का वातावरण, पर्यावरण अलग ढंग का होता है, दोपहर का अलग, तो डायवर्नल भी होता है, सीजनल भी होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ चेंजेज आते हैं. तो हम हमेशा इस बात के लिए अवेयर होते हैं कि पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं, और इसलिए अवेयर होते हैं पर्यावरण में चेंजेस के लिए क्योंकि ये हमारे लाइफ को, जितने भी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया भर में अर्थ सरफेस पर, वो सारे के सारे दे आर अफेक्टेड विद चेंजिंग एनवायरनमेंट. पर्यावरण का प्रभाव सभी जीवों पर डायरेक्ट पड़ता है, और उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसको वातावरणीय कारक कहते हैं, वो जिसमें प्रकाश है, तापमान है, और आजकल आप जानते हो कि तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज वेरी पॉपुलर टर्म, कि तापमान में वृद्धि हो रही है. तो पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कई बार भी ऐसा हुआ है कि तापमान में वृद्धि भी हुई है और तापमान में बहुत गिरावट भी आई है. उसका प्रभाव तमाम तरह के जीवों पर पड़ा है. तो हम
इन सारे बातों का अगर एक वाक्य बनाएं, एवरी स्पीसीज मस्ट बी इन हार्मोनी in regards its internal and external constitutions with regards their environmental conditions where they are living. If any change in the environment and organisms cannot adapt themselves to the changing environment, they cannot survive. They will be expelled out. So, the adaptation is very important phenomena, and it is also applied on the crop plants. We know the ability of plants to harness the energy from the sun, and it is actually flow to the other living organisms, including human beings, by the production of food. And due to the environmental changes, their growth, their reproductive system, which producing grains, that is very important to optimize, because as far as Indian content and like those countries which are engaged basically on the agriculture, they need to produce optimum crop production under the changing environment. तो सो बदलते पर्यावरण में खाद्य अधिक से अधिक कैसे पैदा हो, ये भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है। इस पर फोकस करना, और सिर्फ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ही ना बढ़े, बल्कि क्रॉप की हमारे सस्टेनेबिलिटी भी रहे, वो हमेशा चलता रहे, ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स अडॉप्ट करते हैं। तो इन सब के लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि जो पौधे का ऊपर का भाग होता है वो प्रकाश को शोषित करके फूड बनाता है, और जो उसकी जड़ होती है किसी ग्रोथ मीडियम में, जिसमें कि सॉइल आप कह सकते हो मृदा, उसमें जड़ होती है, और जड़ तमाम तरह के मिनरल्स और जल का अवशोषण करके उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। तो इन दोनों भाग में, यानी कि पौधे के ऊपरी भाग में जो कि पर्यावरण से डायरेक्ट टच में रहता है, और वो चारों तरफ का भाग जो जड़ के चारों तरफ होता है, रूट के चारों तरफ होता है, वो भाग, वो पर्यावरण हमेशा इस तरह होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इस तरह से बनाए कि पौधा निरंतर उसको ग्रहण करता रहे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, जिससे हम इन सारी समस्याओं के से निजात पा सकते हैं, और अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हुए, इसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाते हुए इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो हम ये एक बहुत बड़ा टूल है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, जिससे हम तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पर्यावरण में चेंज होता है तो बहुत तरह के निगेटिव इफेक्ट्स प्लांट पर आने लगते हैं, तो उनको सहने के लिए उन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, और तब जाके वो अपने बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फिनोमेना से उनको वो प्रतिरोध करता है और अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखता है। तो पर्यावरण कारकों में आजकल जो सबसे रिसेंट जो आया है वो ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने सुना हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो इधर ये देखा गया 200 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। इस ग्राफ में अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इधर 3 to 4 डेकेड्स ये लगातार इतना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि उतने रेट से पौधा, प्लांट्स या क्रॉप्स अपने आप को एडॉप्टिव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक प्रश्न उठता है कि प्रोडक्टिविटी का क्या होगा, जबकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड वी थिंक अबाउट द क्रॉप्स, नॉट ओनली देयर फूड प्रोडक्शन, बट इट इज आल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हमारे भारतवर्ष में 17 to 18% जीडीपी का एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है और लगातार बढ़ नहीं रही है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। About 70% people are engaged in agricultural sectors. Our agricultural lands are very little as compared to other countries. Total geographical land of our India is about 328 million hectares, and out of this geographical area, only 161 million hectare land is utilized
for crop production. So no doubt the area is contributing 2.5% to the total geographical land on the earth's surface. We are contributing only 2.4% land area, but our population is contributing 17 to 18%. तो पॉपुलेशन 17 से 18% हम शेयर कर रहे हैं और जो लैंड हमारे पास है वो कम है। और अगर एक तरह से देखें प्रति व्यक्ति कितना लैंड, कितना एग्रीकल्चरल लैंड इस जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से है, तो दैट इज ओनली 0.12 हेक्टेयर पर कैपिटा लैंड। यही 40 से 50 साल पहले 0.4 मिलियन हेक्टेयर, 0.4 हेक्टेयर पर कैपिटा था, जो घटकर 0.1 हेक्टेयर हो गया। तो लैंड इज श्रिंकिंग, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, environmental conditions are exerting a negative pressure on the crops. So how we can sustain our production, how we can increase our production, how we can maintain the quality of the production, this is big question. Okay, so for solving this problem, we can utilize some aspects. The one is site specific, the another is global. So we are always aware how we can reduce the carbon dioxide, how we can protect our environment from various anthropogenic activities, but crop is only, the duration is only 3 to 4 months, 4 to 5 months. In this short duration, how we can manage the environment? This is very difficult. We cannot manage. So only one Paryavaran environment around the roots, plant roots, we can supply the nutrients and provide the facility. By the facility, by the management of nutrients and their conditions to the plant, by the proper nutritional balances and water conditions, plant can produce optimum production by the harnessing the light from the sun and carbon dioxide from the air, and they can produce the maximum production along with qualitative. It means the minerals, proteins, vitamins, different things should be proper in the food grains. Otherwise, malnutrition, भोजन में अगर मिनरल्स की कमी है तो उससे कुपोषण होती है। अगर उसमें जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, तो लोग कुपोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए उनके पास जो पुअर पीपल है पर्टिकुलरली, एंड यू नो अबाउट 2 बिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम malnutrition throughout the world. This is big problem. So how we can manage? We can manage the soil. आपने नाम सुना होगा soil testing, मृदा का परीक्षण, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि मृदा में क्या परीक्षण करना चाहिए? बस और नेक्स्ट okay, we discussed you the land in particularly in India is very little, population is very high, even we are contributing 17 to 18% of GDP of our country. We are providing the raw materials from the agricultural sectors to the industry. We are giving the employment to the 70% people of the India. No doubt, we have to focus the production of crops. Next. ओके, तो हम ये कह रहे थे कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट से हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। इसमें किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वहाँ की मृदा कैसी है, पहला। दूसरा, उस वहाँ का एजुकेशनल फ्रंट कैसा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं जो कि कृषि की शिक्षा देते हैं, और वहाँ कैपिटल कितना लगता है, कैपिटल भी लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और लेबर। ये 4 फ्रेमवर्क को हमको पॉइंट आउट करना होता है ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो हम इसको तभी कर सकते हैं जब इन चारों सेक्टर को मैनेज करेंगे, और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि मृदा के परीक्षण के लिए हमें किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, मृदा कैसी होनी चाहिए, इसके परीक्षण के लिए हमें बहुत महंगे मशीन की ज़रूरत नहीं है। हम जो फार्मर हैं वो ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं, और वो जाके फील्ड में अपने मिट्टी को देखते हैं और अपने उंगलियों के बीच में रब करके बता देते हैं कि ये बलुई मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है, ये किस तरह की मिट्टी है।
और उसके आधार पर वो बता सकते हैं कि उसमें पानी की जरूरत कितनी है, कौन सा क्रॉप उसमें बोया जा सकता है। यानी एक सिंपल टेस्टिंग, जो फिजिकल टेस्टिंग आपने कर लिया कि वो मिट्टी बलुई है, चिकनी है, दोमट है, किस तरह की मिट्टी है, सिर्फ उसी से हम पता कर सकते हैं कि हमको किस तरह का क्रॉप, कितना वाटर देना पड़ेगा। बहुत सारी बातों को हम उससे पता कर सकते हैं। इसी तरह से उसकी डेंसिटी, कितना सॉइल कॉम्पैक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, उसमें एरेशन नहीं होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो पुअर रहेगी, ऐसे में प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से नहीं होगा। पोरोसिटी क्या है, टेम्परेचर सॉइल का क्या है, ये बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि उसकी उर्वरकता तमाम तरह की जीवों की एक्टिविटी पे, पर्टिकुलरली माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, उनकी एक्टिविटी पर निर्भर करती है। जो वातावरण का नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स करके इस लायक बनाते हैं कि जड़ उसको अवशोषित कर सके। तो ऐसी कंडीशन में ये फिजिकल स्ट्रक्चर का होना सही ढंग का बहुत जरूरी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत लो है, वो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कम कर देता है। लेकिन सॉइल में अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बहुत चलती है, तो हम एक्चुअली क्या सप्लाई करते हैं, एक तरह से ह्यूमस, जो कि कोलाइडल फ्रैक्शन है, केमिस्ट्री के लोगों को अच्छे से पता होगा, बहुत स्मॉल पार्टिकल साइज होता है, और सारे आयंस जाके, जो न्यूट्रिएंट आयंस हैं, वो उसके जाके उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर एक तरह से बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को होल्ड भी करता है और उसकी अवेलेबिलिटी को निरंतर बनाए रहता है, तो सॉइल की केमिस्ट्री ही एक्चुअली सॉइल की टेस्टिंग में आता है, जहाँ पे कुछ महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारे किसान तो बहुत सी चीज़ें जो है सिंपली देख करके और टच करके पता कर लेते हैं। तो अब हम वहाँ पर सॉइल की केमिस्ट्री में ये देखने की बात है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो कितना है, सबका एक डाटा बना हुआ है कि कितना होना चाहिए। अब उससे पता लगा लेते हैं कि वो ज़्यादा है या कम है, यानी कि उसकी कमी है या वो उसकी अधिकता है। दूसरी चीज़, अगर वो कम है या अधिक है या सामान्य तौर पर है, तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए जो फैक्टर्स हैं सॉइल के अंदर, क्या वो इस लायक हैं कि वो उनकी अवेलेबिलिटी को बना सकते हैं। तो इसके लिए सॉइल की केमिस्ट्री में हम एक तरह से कोलाइडल सरफेस आयन एक्सचेंज कैपेसिटी और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि सिंपली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पीएच, सॉइल का पीएच। ये न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, यानी कि 5 से नीचे हो गया और 8 से ऊपर चला गया पीएच, तो वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो हम उसको पीएच पेपर से भी टेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ का पीएच किस रेंज में आता है। और इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट, आप जानते हैं वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, वाटर कंटेंट्स, वहाँ का पीएच, ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनसे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वो मिट्टी, वो मृदा एक्चुअली उस न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के लिए उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है। इसी मृदा टेस्टिंग की अति आवश्यकता होती है। अगर हम इनमें से कोई एक नहीं करते हैं तो इसका मतलब काम जो है वो अधूरा है, टेस्टिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ये सारे पहलू को ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल टेस्टिंग, मृदा का भौतिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण, दोनों के कोरिलेशन को जब हम डेवलप करते हैं, तभी हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि तत्वों के प्रबंधन के कार्य को उचित ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने यहाँ दिखाया कि कोलाइडल सरफेसेस पर कैसे जाके न्यूट्रिएंट आयंस चिपकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उन पर चार्जेज होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और अपोजिटिवली चार्ज आयंस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेसेस एंड दे आर एक्सचेंज एंड अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट रूट्स। तो पौधों की जड़ों के एब्जॉर्प्शन के लिए वो इस तरह से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे कोई फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं, यूरिया डालते हैं और फिर तमाम तरह के खेतों में उर्वरकता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटेशियम के, जिंक के,
हम फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, तो क्या होता है, एक पीएच चेंज हो जाता है, और अगर सडन चेंजेस होता है तो प्लांट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसकी सहनशीलता इतनी नहीं होती है। तो मृदा खुद अपने आप को उस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है, और जिसकी वजह से उन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता बनी रहे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बफरिंग ऑफ द सॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब कितने तरह के तत्व होते हैं जो पौधों को जरूरत पड़ती है? कुल 17 तरह के तत्व। कुछ जो होते हैं उनको दीर्घ तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और कुछ को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी बहुत कम जरूरत होती है लेकिन आवश्यकता उनका बहुत है, उनको माइक्रो कहते हैं। और जिनकी जरूरत ज्यादा होती है उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी दीर्घ तत्व कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। इसी के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर्यावरण से मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि पर्यावरण का सही होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे जिंक का, आप जानते हैं जिंक का उपयोग करते हैं, कॉपर है, आयरन है। आयरन कितना इंपॉर्टेंट है, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, ये सब ऐसे तत्व हैं जो पौधों को जरूरत होती है। इनमें से कोई एक तत्व भी की कमी हो जाए तो पौधा ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं दे सकता, उसकी अधिकतम उपज नहीं मिल सकती है। तो सारे इतने तत्वों की एक उचित मात्रा होनी चाहिए, और इसका एक डाटाबेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी सेंटर पे उपलब्ध होना चाहिए, जिससे परीक्षण के आधार पर हम बता सकें कि कौन सी सॉइल में क्या स्तर है और उसके प्रबंधन के लिए हमको क्या करना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो आखिर ये तत्व करते क्या है पौधों में जाके? जैसे प्रकाश संश्लेषण से पौधा फूड बनाता है तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। इसी तरह से रेस्पिरेशन में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हैं जिनके करने के लिए इन तत्वों की जरूरत होती है, और जो इन्वायरमेंटल में चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से उनके अंदर ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, अगर उनको ना न्यूट्रलाइज किया जाए तो पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं, उनके लिए इन तत्वों का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इनका अगर ये कम है, ज़्यादा है, तो पौधा अपने को सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमें इसलिए इसका प्रबंधन करना जरूरी होता है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स दिया है। इनका जो फंक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस, यानी विपरीत परिस्थितियों से पर्यावरण के। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोशिकाओं में जितने भी तरह के उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनमें इनका रोल होता है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें पौधों में ग्रेन्स बनती हैं, फ्लावर्स बनते हैं, उनमें इनकी जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण में इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें इनका प्रबंधन आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो अगर हमें पता करना हो कि किसी तत्व की कमी है या किसी तत्व की कमी है या ज़्यादा है, तो इसके लिए हम मृदा परीक्षण करते हैं, और कभी कभी पौधों के ऊपरी सतह पर देख करके भी पता कर लेते हैं कि किसी तत्व की कमी है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे यहाँ पे सोयाबीन में दिखाया गया है आयरन की कमी, और नेक्स्ट प्लीज। इस फोटोग्राफ में भी आयरन की डेफिशिएंसी दिखाई गई है टोमेटो में, और नेक्स्ट प्लीज, जिंक की कमी दिखाई गई है, बोरान की कमी यहाँ सनफ्लावर में दिखाई गई है। तो एक पहचान से हम पता कर सकते हैं कि किस तत्व की कमी जो है वहाँ पर है। तो पता करने के बाद अब हमें अगर एक बार पता लग गया कि इस तत्व का कमी है, तो हम उसका प्रबंधन उचित ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जिंक की डेफिशिएंसी शो कर रहा है, और इस तरह से हम कुछ प्रोसेसेस अपनाते हैं पर्यावरण के हिसाब से तत्वों के प्रबंधन के लिए, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसका मतलब हुआ कि कुछ रासायनिक तत्व भी हों और उसके साथ कुछ जैविक तत्व भी हों, इनको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, यानी जिस जगह पे प्रॉब्लम है उसी जगह पे आइडेंटिफाई करें और वहां पर जाके प्रबंधन करें, हम इसको कहते हैं साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्लीज। और इसी तरह से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का भी उपयोग कर सकते हैं,
जैसे हमारे कृषि के स्टॉल पे आप जाके देखिएगा, काले रंग का गेहूं आपको दिख रहा होगा जो कि म्यूटेंट है। आपने गेहूं के कई कलर देखे होंगे, ब्लैक कलर ग्रेन्स आप वहाँ देख सकते हैं स्टॉल पर। इसी तरह से अनेकों तरह की प्रजातियां अनेकों तरह के रूप के साथ उपलब्ध हैं। तो इन तरह के प्रबंधन से और इस सोच के साथ हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और बदलते हुए पर्यावरण से लड़ते हुए हम अपने पौधों की और फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Miss Vanisa and Miss Shivangi, Central Organizing Committee के